हम पढ़ेंगे ड्यूटरनॉमी 3 चैप्टर 4 चैप्टर किंग्स जेम्स वर्शन में से पढ़ेंगे। ड्यूटरनॉमी 3 चैप्टर 4 चैप्टर किंग्स जेम्स वर्शन में से, फिर हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। थैंक यू जीसस क्राइस्ट। पिता परमेश्वर, सच्चाई का सामना करा हमें, झूठ को पर्दाफाश कर ताकि हम धोखे में भ्रम में ना रहे खुदा। हमारे सामने पिता जो भी है वो सच्चाई को प्रकट कर खुदा। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं पिता, सुन और कबूल कर। आमीन आमीन आमीन। Deuteronomy chapter 3. Conquest of Og, king of Bashan. Moses' exhortation to Joshua. Moses' prayer to enter into the land. He is permitted to see it. First verse say, Then we turned and went up the way to Bashan, and Og, the king of Bashan, came out against us, he and all his people, to battle at Edrei. And the Lord said unto me, Fear him not, for I will deliver him and all his people and his land into thy hand, and thou shalt do unto him as thou didst unto Sihon, king of the Amorites, which dwelt at Heshbon. So the Lord our God delivered into our hands Og also, the king of Bashan, and all his people, and we smote him until none was left to him remaining. And we took all his cities at that time. There was not a city which we took not from them, 80 cities, all the region of Argob, the kingdom of Og in Bashan. All these cities were fenced with high walls, gates, and bars, beside unwalled towns a great many. And we utterly destroyed them, as we did unto Sihon, king of Heshbon, utterly destroying the men, women, and children of every city. But all the cattle and the spoil of the cities we took for a prey to ourselves. And we took at that time out of the hand of the 2 kings of the Amorites, the king that was on this side Jordan, from the river of Arnon unto Mount Hermon, which Hermon the Sidonians call Sirion, and the Amorites call it Shinear. All the cities of the plain, and all Gilead, and all Bashan, unto Salcah, and Edrei, cities of the kingdom of Og in Bashan. For only Og, king of Bashan, remained of the remnant of giants. Behold, his bedstead was a bedstead of iron. Is it not in Rabbath of the children of Ammonine? Cubits was the length thereof, and 4 cubits the breadth of it, after the cubit of a man. And this land which we possessed at that time from Aroer, which is by the river Arnon, and half Mount Gilead, and the cities thereof, gave I unto the Reubenites and to the Gadites. And the rest of Gilead and all Bashan, being the kingdom of Og, gave I unto the half tribe of Manasseh, all the region of Argob, with all Bashan, which was called the land of giants. Jair the son of Manasseh took all the country of Argob unto the coasts of Geshuri and Makhathi, and called them after his own name, Bashan Havoth Jair, unto this day. And I gave Gilead unto Machir, and unto the Reubenites and unto the Gadites I gave from Gilead even unto the river Arnon, half the valley, and the border even unto the river Jabbok, which is the border of the children of Ammon, the plain also, and Jordan, and the coast thereof from Chinnereth even unto the sea of the plain, even the salt sea under Ashdod, Pisgah, eastward. And I commanded you at that time, saying, The Lord your God hath given you this land to possess it. Ye shall pass over armed before your brethren the children of Israel, all that are meet for the war, but your wives and your little ones and your cattle, for I know that ye have much cattle, shall abide in your cities when I have given you.
until the Lord hath given rest unto your brethren as well as unto you, and until they also possess the land which the Lord your God hath given them beyond Jordan, and then shall ye return every man unto his possession which I have given you. And I commanded Joshua at that time, saying, Thine eyes have seen all that the Lord your God had done unto these two kings. So shall the Lord do unto all the kingdoms whither thou passest. Ye shall not fear them, for the Lord your God, he shall fight for you. And I besought the Lord at that time, saying, O Lord God, thou hast begun to shew thy servant thy greatness and thy mighty hand. For what God is there in heaven or in earth that can do according to thy works and according to thy might? I pray thee, let me go over and see the good land that is beyond Jordan, that goodly mountain and Lebanon. But the Lord was wrath with me for your sakes, and would not hear me. And the Lord, speak no more unto me of this matter. Get thee up into the top of the Pisgah, and lift up thine eyes westward and northward, and southward and eastward, and behold it with thine eyes, for thou shalt not go over this Jordan. Okay, but charge Joshua and encourage him and strengthen him, for he shall go over before this people, and he shall cause them to inherit the land which thou shalt see. So abode in the valley over against Beth Peor. Chapter 4. An exhortation to obedience. A particular dissuasive against idolatry. Moses appointed three cities of refuge on that side Jordan. First verse say, Now therefore hearken, O Israel, unto the statutes and unto the judgments which I teach you, for to do them, that ye may live and go in and possess the land which the Lord God of your fathers giveth you. Ye shall not add unto the word which I command you, neither shall ye diminish out from it, that ye may keep the commandments of the Lord your God which I command you. Your eyes have seen what the Lord did because of Baal Peor. For all the men that followed Baal Peor, the Lord thy God hath destroyed them from among you. But ye that cleave unto the Lord your God are alive, every one of you this day. Behold, I have taught you statutes and judgments, even as the Lord my God commanded me, that ye should do so in the land whither ye go to possess it. Keep therefore and do them, for this is your wisdom and your understanding in the sight of the nations, which shall hear all these statutes and say, Surely this great nation is a wise and understanding people. For what nation is there so great, who hath God so nigh unto them, as the Lord our God is in all things that we call upon him for? And what nation is there so great that hath statutes and judgments so righteous as all this law which I set before you this day? Only take heed to thyself and keep thy soul diligently, lest thou forget the things which thine eyes have seen, and lest they depart from thy heart all the days of thy life, but teach them thy sons and thy sons' sons, especially the day that thou stoodest before the Lord thy God in Horeb, when the Lord said unto me, Gather me the people together, and I will make them hear my words, that they may learn to fear me all the days that they shall live upon the earth, and that they may teach their children. And ye came near and stood under the mountain, and the mountain burnt with fire unto the midst of heaven, with darkness, clouds, and thick darkness. And the Lord spake unto you out of the midst of the fire. Ye heard the voice of the words, but saw no similitude, only ye heard a voice. And he declared unto you his covenant, which he commanded you to perform, even 10 commandments, and he
wrote them upon 2 tables of stone. And the Lord commanded me at that time to teach you statutes and judgments, that ye might do them in the land whither ye go over to possess it. Take ye therefore good heed unto yourselves, for ye saw no manner of similitude on the day that the Lord spake unto you in Horeb out of the midst of the fire, lest ye corrupt yourselves and make you a graven image, the similitude of any figure, the likeness of male or female, the likeness of any beast that is on the earth, the likeness of any winged fowl that flieth in the air, the likeness of anything that creepeth on the ground, the likeness of any fish that is in the waters beneath the earth. And lest thou lift up thine eyes unto heaven, and when thou seest the sun and the moon and the stars, even all the host of heaven, shouldest be driven to worship them and serve them, which the Lord thy God had divided unto all nations under the whole heaven. But the Lord had taken you and brought you forth out of the iron furnace, even out of Egypt, to be unto him a people of inheritance, as ye are this day. Furthermore, the Lord was angry with me for your sakes, and swear that I should not go over Jordan, and that I should not go in unto that good land which the Lord thy God giveth thee for an inheritance. But I must die in this land. I must not go over Jordan, but ye shall go over and possess that good land. Take heed unto yourselves, lest ye forget the covenant of the Lord your God, which he made with you, and make you a graven image, or the likeness of anything which the Lord thy God hath forbidden thee. For the Lord thy God is a consuming fire, even a jealous God. When thou shalt beget children, the children's children, and ye shall have remained long in the land, and shall corrupt yourselves, and make a graven image or the likeness of anything, and shall do evil in the sight of the Lord thy God, to provoke him to anger, I call heaven and earth to witness against you this day, that ye shall soon utterly perish from off the land whereunto ye go over Jordan to possess it. Ye shall not prolong your days upon it, but shall utterly be destroyed. And the Lord shall scatter you among the nations, and ye shall be left few in number among the heathen, whither the Lord shall lead you. And there ye shall serve gods, the work of man's hands, wood and stone, which neither see, nor hear, nor eat, nor smell. But if from thence thou shalt seek the Lord thy God, thou shalt find him, if thou seek him with all thy heart and with all thy soul. When thou art in tribulation, and all these things are come upon thee, even in the later days, if thou turn to the Lord thy God, and shalt be obedient unto his voice, for the Lord thy God is a merciful God. He will not forsake thee, neither destroy thee, nor forget the covenant of thy fathers, which he sware unto them. For ask now of the days that are past, which were before thee, since the day that God created man upon the earth, and ask from the one side of heaven unto the other, whether there hath been any such thing as this great thing is, or hath been heard like it. Did ever people hear the voice of God speaking out of the midst of the fire, as thou hast heard, and live? Or hath God essayed to go and take him a nation from the midst of another nation, by temptations, by signs, and by wonders, and by war, and by a mighty hand, and by a stretched out arm, and by great terrors, according to all that the Lord your God did for you in Egypt before your eyes? Unto thee it was shewed that thou mightest know that the Lord, he is God, there is none else beside him. Out of heaven he made thee to hear his voice, that he might instruct thee, and upon earth he shewed thee his great fire, and thou heardest his words out of the midst of the fire. And because he loved thy fathers, therefore he chose their seed after them, and brought thee out in his sight with his mighty power out of Egypt. इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए, मैंने तो ले लिया है इसको, आप
मैं बताती हूँ क्यों। क्योंकि परमेश्वर जनरेशंस को लेता है। ओके, अगला बच्चा जो जन्म लेगा, परमेश्वर उसके बारे में सोचता है कि ये मेरे राज्य में आना है। ओके, to drive out nations from before thee, greater and mightier than that thou art, to bring thee in, to give thee their land for an inheritance as it is this day. Know therefore this day and consider it in thine heart, that the Lord He is God in heaven above and upon the earth beneath, there is none else. Thou shalt keep therefore his statutes and his commandments which I command thee this day, that it may go well with thee, and with thy children after thee, and with thy children after thee, and that thou mayest prolong thy days upon the earth which the Lord thy God giveth thee forever. Then Moses severed 3 cities on this side Jordan toward the sun rising, that the slayer might flee thither which should kill his neighbor unawares, and hated him not in times past, and that fleeing unto one of these cities he might live, namely Bezer in the wilderness in the plain country of the Reubenites, and Ramoth in Gilead of the Gadites, and Golan in Bashan of the Manassites. And this is the law which Moses set before the children of Israel. These are the testimonies and the statutes and the judgments which Moses spake unto the children of Israel after they came forth out of Egypt on this side Jordan, in the valley over against Beth Peor, in the land of Sihon king of the Amorites, who dwelt at Heshbon, whom Moses and the children of Israel smote after they were come forth out of Egypt. And they possessed his land and the land of Og king of Bashan, 2 kings of the Amorites, which were on this side Jordan toward the sun rising, from Aroer, which is by the bank of the river Arnon, even unto Mount Sion, which is Hermon, and all the plain on this side Jordan eastward, even unto the sea of the plain under the springs of Pisgah. हम इन्हीं वचनों को पढ़ेंगे हिंदी में ईसाई बाइबल में से। व्यवस्था विवरण 3 अध्याय 4 अध्याय। राजा ओग की पराजय। तब हम मुड़कर बाशान के मार्ग से चढ़ चले, और बाशान का ओग नामक राजा अपनी सारी सेना समेत हमारा सामना करने को निकल आया कि एद्रई में युद्ध करे। तब यहोवा ने मुझसे कहा, उससे मत डर, क्योंकि मैं उसको सारी सेना और देश समेत तेरे हाथ में किए देता हूँ। और जैसा तूने हेशबोन के निवासी एमोरियों के राजा सीहोन से किया है, वैसा ही उससे भी करना। इस प्रकार हमारे परमेश्वर यहोवा ने सारे सेना समेत बाशान के राजा ओग को भी हमारे हाथ में कर दिया, और हम उसको यहाँ तक मारते रहे कि उनमें से कोई भी न बच पाया। उसी समय हमने उनके सारे नगरों को ले लिया, कोई ऐसा नगर न रह गया जिसे हमने उनसे ले लिया हो। इस रीति अर्गोब का सारा देश जो बाशान में ओग के राज्य में था, और उसमें 60 नगर थे, वह हमारे वश में आ गया। ये सब नगर गढ़ वाले थे, और उनके ऊंची ऊंची शहरपना और फाटक और बेंडे ओके। और इनको छोड़ बिना शहरपना के भी बहुत से नगर थे। और जैसा हमने हेशबोन के राजा सीहोन के नगरों से किया था, वैसा ही हमने इन नगरों से भी किया, अर्थात सब बसे हुए नगरों का स्त्रियों और बाल बच्चों समेत सत्यानाश कर डाला। परंतु सब घरेलू पशु और नगरों की लूट हमने अपनी कर ली। यो हमने उस समय यरदन के इस पार रहने वाले एमोरियों के दोनों राजाओं के हाथ से अर्नोन के नाल से लेकर हेर्मोन पर्वत तक का देश ले लिया। हेर्मोन को सिदोनी लोग सिरियोन और एमोरी लोग सनीर कहते हैं। समथर देश के सब नगर और सारा गिलाद और सिल्का और एद्रई तक जो ओग के राज्य के नगर थे, सारा बाशान हमारे वश में आ गया। जो रपाई रह गए थे, उनमें से केवल बाशान का राजा ओग रह गया था, उसके 4 पाई जो लोहे की है, वह अम्मोनियों के रब्बा नगर में पड़ी है। साधारण पुरुष के हाथ के हिसाब से उसकी लंबाई 9 हाथ की और चौड़ाई 4 हाथ की है। देश की भूमि का बंटवारा। 12 वचन से आगे, जो देश हमने उस समय अपने अधिकार में ले लिया वह यह है।
अर्थात अर्नोन के नाले के किनार वाले अरोर नगर से ले अब सब नगरों समेत गिलाद की पहाड़ी देश का आधा भाग, जिसे मैंने रूबेनियों और गादियों को दे दिया, और गिलाद का बचा हुआ भाग और सारा बाशान अर्थात अर्गोब का सारा देश जो ओग के राज्य में था, इन्हें मैंने मनश्शे के आधे गोत्र को दे दिया। सारा बाशान तो रपाइयों का देश कहलाता है, और मनश्शेई याईर ने गशूरियों और मकवासियों की सीमा तक अर्गोब का सारा देश ले लिया, और बाशान के नगरों का नाम अपने नाम पर हब्बोत्याईर रखा, और वही नाम आज तक बना है। और मैंने गिलाद देश माकिर को दे दिया, और रूबेनियों और गादियों को मैंने गिलाद से ले अर्नोन के नाले तक का देश दे दिया, अर्थात उस नाले का बीच उनकी सीमा ठहराया, और यब्बोक नदी तक जो अम्मोनियों की सीमा है, और किन्नरेत से ले पिसगा की ढलान के नीचे के अराबा के ताल तक जो खारा ताल भी कहलाता है, अराबा और यर्दन के पूर्व की ओर का सारा देश भी मैंने उन्हीं को दे दिया। उस समय मैंने तुम्हें यह आज्ञा दी, तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुम्हें यह देश दिया है कि उसे अपने अधिकार में रखो। तब तुम सब योद्धा हथियारबंद होकर अपने भाई इस्राएलियों के आगे आगे पार चलो, परंतु तुम्हारी स्त्रियां और बाल बच्चे और पशु, जिन्हें मैं जानता हूँ कि बहुत से हैं, वह सब तुम्हारे नगरों में जो मैंने तुम्हें दिए हैं रह जाए। और जब यहोवा तुम्हारे भाइयों को वैसा विश्राम दे जैसा कि उसने तुमको दिया है, और वे उस देश के अधिकारी हो जाए जो तुम्हारा परमेश्वर यहोवा उन्हें यर्दन पार देता है, तब तुम भी अपने अपने अधिकार की भूमि पर जो मैंने तुम्हें दी है लौटोगे। ओके, तो परमेश्वर रेस्ट भी देता है। ओके, और कमजोर अवस्था के लोगों का भी वो ख्याल रखता है। आमीन। आगे देखिए 21 वर्ष से, फिर मैंने उसी समय यहोशू से चिताकर कहा, तूने अपनी आंखों से देखा है कि तेरे परमेश्वर यहोवा ने इन दोनों राजाओं से क्या क्या किया है, वैसा ही यहोवा उन सब राज्यों से करेगा जिनमें तो पार होकर जाएगा। देखा, हमारा होना पृथ्वी के ऊपर दूसरों के लिए लाभदायी है, परमेश्वर के तरफ से, शैतान की तरफ से नहीं। 22 वचन, उनसे न डरना, क्योंकि जो तुम्हारी ओर से लड़ने वाला है वह तुम्हारा परमेश्वर यहोवा है। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। मूसा कनान में प्रवेश से वंचित। उसी समय मैंने यहोवा से गिड़गिड़ाकर विनती की, हे प्रभु यहोवा, तू अपने दास को अपनी महिमा और बलवंत हाथ दिखाने लगा है। स्वर्ग में और पृथ्वी पर ऐसा कौन देवता है जो तेरे से काम और पराक्रम के कर्म करे सके। इसलिए मुझे पार जाने दे कि यर्दन पार के उस उत्तम देश को, अर्थात उस उत्तम पहाड़ और लबानोन को भी देखने पाऊं। परंतु यहोवा तुम्हारे कारण मुझसे रुष्ट हो गया और मेरी न सुनी। किंतु यहोवा ने मुझसे कहा, बस कर, इस विषय में फिर कभी मुझसे बातें न करना। पिसगा पहाड़ की चोटी पर चढ़ जा और पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों ओर दृष्टि करके उस देश को देख ले, क्योंकि तू इस यर्दन के पार जाने न पाएगा। और यहोशू को आज्ञा दे और उसे ढाढ़स देकर दृढ़ कर, क्योंकि इन लोगों के आगे आगे वही पार जाएगा, और जो देश तू देखेगा उनको वही उनके निज भाग करा देगा। तब हम बेनपोर के सामने की तराई में ठहरे रहे। मूसा का उपदेश 4 अध्याय पहले वचन से। अब हे इस्राएल, जो जो विधि और नियम मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूँ उन्हें सुन लो और उन पर चलो, जिससे तुम जीवित रहो, और जो देश तुम्हारे पितरों का परमेश्वर यहोवा तुम्हें देता है उसमें जाकर उसके अधिकारी हो जाओ। जो आज्ञा मैं तुमको सुनाता हूँ उसमें न तो कुछ बढ़ाना और न कुछ घटाना, तुम्हारा परमेश्वर यहोवा की जो जो आज्ञा मैं तुम्हें सुनाता हूँ तुम मानना। तुमने तो अपनी आंखों से देखा है कि बालपोर के कारण यहोवा ने क्या क्या किया, अर्थात जितने मनुष्य बालपोर के पीछे हो लिए थे उन सबों का तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुम्हारे बीच में से सत्यानाश कर डाला। परंतु तुम जो अपने परमेश्वर यहोवा के साथ लिपटे रहे हो, सबके सब आज तक जीवित हो। सुनो, मैंने तो अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के अनुसार तुम्हें विधि और नियम सिखाए हैं। जिस देश के अधिकारी होने जाते हो उसमें तुम उनके अनुसार चलो।
इसलिए तुम उनको धारण करना और मानना, क्योंकि और देशों के लोगों के सामने तुम्हारी बुद्धि और समझ इससे प्रकट होगी। ध्यान रखना ये बात, ओके। अर्थात वे इन सभी विधियों को सुनकर कहेंगे कि निश्चय यह बड़ी जाति बुद्धिमान और समझदार है। हालेलुया। तो लोग हमको एक जाति बोलकर देखते हैं, ठीक है, वो एक जाति समझते हैं हम लोगों को, और वो बोलते हैं ये वाली जो जाति है ये बड़ी बुद्धिमान और समझदार जाति है। देखो कौन ऐसी बड़ी जाति है जिसका देवता उसके ऐसे समीप रहता हो जैसा हमारा परमेश्वर यहोवा, जबकि हम उसको पुकारते हैं। फिर कौन ऐसी बड़ी जाति है जिसके पास ऐसी धर्ममय विधि और नियम हो जैसी कि यह सारी व्यवस्था जिसे मैं आज तुम्हारे सामने रखता हूँ। वह अत्यंत आवश्यक है कि तुम अपने विषय में सचेत रहो और अपने मन की बड़ी चौकसी करो। कहीं ऐसा न हो कि जो जो बातें तुमने अपनी आंखों से देखी उनको भूल जाओ और वह जीवन भर के लिए तुम्हारे मन से जाती रहे, किंतु तुम उन्हें अपने बेटों पोतों को सिखाना, विशेष करके उस दिन की बातें जिसमें तुम होरेब के पास अपने परमेश्वर यहोवा के सामने खड़े थे, जब यहोवा ने मुझसे कहा था उन लोगों को मेरे पास इकट्ठा कर कि मैं उन्हें अपने वचन सुनाऊं जिससे वे सीखे, ताकि जितने दिन वे पृथ्वी पर जीवित रहे उतने दिन मेरा भय मानते रहे और अपने बाल बच्चों को भी यही सिखाए। तब तुम समीप जाकर उस पर्वत के नीचे खड़े हुए और वह पहाड़ आग से धधक रहा था। हालेलुया। वह पहाड़ आग से धधक रहा था और उसकी लौ आकाश तक पहुंचती थी और उसके चारों ओर अंधियारा और बादल और घोर अंधकार छाया हुआ था। तब यहोवा ने उस आग के बीच में से तुमसे बातें की। बातों का शब्द तो तुमको सुनाई पड़ा, परंतु कोई रूप न दिखा, केवल शब्द ही शब्द सुनाई पड़ा। और उसने तुमको अपनी वाचा के 10 वचन बताकर उनके मानने की आज्ञा दी और उन्हें पत्थर की 2 पटियाओं पर लिख दिया। और मुझको यहोवा ने उसी समय तुम्हें विधि और नियम सिखाने की आज्ञा दी, इसलिए कि जिस देश के अधिकारी होने की तुम पार जाने पर हो उसमें तुम उनको माना करो। मूर्ति पूजा के विरुद्ध चेतावनी। 15 वचन से आगे, इसलिए तुम अपने विषय में बहुत सावधान रहना, क्योंकि जब यहोवा ने तुमसे होरेब पर्वत पर आग के बीच में से बातें की तब तुमको कोई रूप न दिखाई पड़ा। कहीं ऐसा न हो कि तुम बिगड़कर चाहे पुरुष चाहे स्त्री के, चाहे पृथ्वी पर चलने वाले किसी पशु, चाहे आकाश में उड़ने वाले किसी पक्षी के, चाहे भूमि पर रेंगने वाले किसी जंतु, चाहे पृथ्वी के जल में रहने वाली किसी मछली के रूप की कोई मूर्ति खोदकर बना लो, या जब तुम आकाश की ओर आंखें उठाकर सूर्य, चंद्रमा और तारों को अर्थात आकाश का सारा तारांकन देखो, तब बहकर उन्हें दंडवत करके उनकी सेवा करने लगो, जिनको तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने धरती पर के सब देश वालों को के लिए रखा है। और तुमको यहोवा लोहे के भट्टे सरीखे मिस्र देश से निकाल ले आया है, इसलिए कि तुम उसका प्रजारूपी निज भाग ठहरो, जैसा आज प्रकट है। फिर तुम्हारे कारण यहोवा ने मुझसे क्रोध करके यह शपथ खाई, तू यरदन पार जाने न पाएगा, और जो उत्तम देश इस्राएलियों का परमेश्वर यहोवा उन्हें उनका निज भाग करके देता है उसमें तू प्रवेश करने न पाएगा। किंतु मुझे इसी देश में मरना है, मैं यरदन पार नहीं जा सकता, परंतु तुम पार जाकर उस उत्तम देश के अधिकारी हो जाओगे। इसलिए अपने विषय में तुम सावधान रहो, कहीं ऐसा न हो कि तुम उस वाचा को भूलकर जो तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुमसे बांधी है, किसी और वस्तु की मूर्ति खोदकर बनाओ, जिसे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुमको मना किया है। क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा भस्म करने वाली आग है, वह जल उठने वाला ईश्वर है। यदि उस देश में रहते रहते बहुत दिन बीत जाने पर और अपने बेटे पोते उत्पन्न होने पर तुम बिगड़कर किसी वस्तु के रूप की मूर्ति खोदकर बनाओ और इस रीति अपने परमेश्वर यहोवा के प्रति बुराई करके उसे अप्रसन्न कर दो, तो मैं आज आकाश और पृथ्वी को तुम्हारे विरुद्ध साक्षी करके कहता हूँ। ओके, देखो आकाश और पृथ्वी की साक्षी क्यों लेना है ना, क्योंकि उसमें पावर्स है, ठीक है। वो पावर्स फिर हमारा नुकसान करने के लिए आज़ाद हो जाते हैं अगर हमने ये व्यवस्था को तोड़ा। वो इस्राएलियों के लिए बोल रहा है ऐसे, ओके।
कि जिस देश के अधिकारी होने के लिए तुम यरदन पार जाने पर हो, उसमें तुम जल्दी बिल्कुल नष्ट हो जाओगे और बहुत दिन रहने न पाओगे, किंतु पूरी रीति से नष्ट हो जाओगे। और यहोवा तुमको देश देश के लोगों में तितर बितर करेगा, और जिन जातियों के बीच यहोवा तुमको पहुंचाएगा उनमें तुम थोड़े ही से रह जाओगे, और वहां तुम मनुष्य के बनाए हुए लकड़ी और पत्थर के देवताओं की सेवा करोगे, जो न देखते और न सुनते और न खाते और न सूंघते हैं। परंतु वहां भी यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा को ढूंढोगे तो वह तुमको मिल जाएगा। शर्त यह है कि तुम अपने पूरे मन से और अपने सारे प्राण से उसे ढूंढो। अंत के दिनों में जब तुम संकट में पड़ो और ये सब विपत्तियां तुम पर आ पड़े, तब तुम अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो और उसकी मानना, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा दयालु ईश्वर है। वह तुमको न तो छोड़ेगा और न नष्ट करेगा, और जो वाचा उसने तेरे पितरों के से शपथ खाकर बांधी है उसको नहीं भूलेगा। जब से परमेश्वर ने मनुष्य को उत्पन्न करके पृथ्वी पर रखा, तब से लेकर तू अपने उत्पन्न होने के दिन तक की बातें पूछ, और आकाश के एक छोर से दूसरे छोर तक की बातें पूछ। क्या ऐसी बड़ी बात कभी हुई या सुनने में आई है? क्या कोई जाति कभी परमेश्वर की वाणी आग के बीच में से आती हुई सुनकर जीवित रही, जैसे कि तूने सुनी है? फिर क्या परमेश्वर ने और किसी जाति को दूसरी जाति के बीच से निकालने को कमर बांधकर परीक्षा और चिन्ह और चमत्कार और युद्ध और बलिहाथ और बढ़ाई हुई भुजा से ऐसे बड़े भयानक काम किए, जैसे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने मिस्र में तुम्हारे देखते किए? यह सब तुझको दिखाया गया इसलिए कि तू जान रखे। देखो, परमेश्वर हमको दिखाने के लिए बताता है, ऐसे भयानक काम वो बताता है, ठीक है, जो हम देखते हैं। परमेश्वर हमारी आंखों को दिखाना चाहता है उसके भयानक काम। ओके, ध्यान रखना, परमेश्वर दिखाता है तब हमारे अंदर परमेश्वर कुछ कारण से दिखा रहा होता है। यह सब तुझको दिखाया गया इसलिए कि तू जान रखे कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसको छोड़ और कोई है ही नहीं, और कोई है ही नहीं। आकाश में से उसने तुझे अपनी वाणी सुनाई कि तुझे शिक्षा दे, और देखो, उसने वाणी सुनाई, कारण क्या था? तुझे शिक्षा दे। और पृथ्वी पर उसने तुझे अपनी बड़ी आग दिखाई, और उसके वचन आग के बीच में से आते हुए तुझे सुनाई पड़े। और उसने जो तेरे पितरों से प्रेम रखा, इस कारण उनके पीछे उनके वंश को चुन लिया, और प्रत्यक्ष होकर तुझे अपने बड़े सामर्थ के द्वारा मिस्र से इसलिए निकाला लाया कि तुझसे बड़ी और सामर्थी जातियां को तेरे आगे से निकालकर तुझे उनके देश में पहुंचाए और उसे तेरा निज भाग कर दे, जैसा आज के दिन दिखाई पड़ता है। इसलिए आज जान ले और अपने मन में सोच भी रख कि ऊपर आकाश में और नीचे पृथ्वी पर यहोवा ही परमेश्वर है और कोई दूसरा नहीं। और तू उसके विधियां और आज्ञाओं को जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ मानना, इसलिए कि तेरा और तेरे पीछे तेरे वंश का भी भला हो। और जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, उसमें तेरे दिन बहुत वरन सदा के लिए हो। शरण नगर 41 वचन से आगे। तब मूसा यरदन के पार पूर्व की ओर 3 नगर अलग किए, इसलिए कि जो कोई बिना जाने और बिना पहले से बैर रखे अपने किसी भाई को मार डाले, वह उनमें से किसी नगर में भाग जाए और भाग कर जीवित रहे, अर्थात रूबेनियों का बस बेसेर नगर जो जंगल के समथर देश में है, और गादियों के गिलाद का रामोत, और मनश्शेइयों के बाशान का गोलान, व्यवस्था के दिए जाने की भूमि का 44 वचन से आगे। फिर जो व्यवस्था मूसा ने इसराइलियों को दी वह यह है। यही वे चेतावनियाँ और नियम है जिन्हें मूसा ने इसराइलियों को उस समय कह सुनाया जब वे मिस्र से निकले थे, अर्थात यरदन के पार बेतपोर के सामने की तराई में एमोरियों के राजा हेशबोनवासी सीहोन के देश में, जिस राजा को उन्होंने मिस्र से निकलने के बाद मारा, और उन्होंने उसके देश को और बाशान के राजा ओग के देश को और अपने वश में कर लिया। यरदन के पार सूर्योदय की ओर रहने वाले एमोरियों के राजाओं के ये देश थे। यह देश अर्नोन के नाले के छोर वाले अरोयर से लेकर सियोन, जो हरमोन भी कहलाता है, उस पर्वत तक का सारा देश, और पिसगा की ढलान के नीचे के अराबा के ताल तक यरदन पार
पूर्व की ओर का सारा अराबा है। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आप महान हो, सर्वशक्तिमान हो। इस दया के लिए आपको धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हम आपसे विनती करते हैं इन वचनों में हमें फिट एंड फिक्स कीजिए। ईश्वरीय रचना डिवाइन ऑर्डरलीनेस में हमको लेकर आइए। नासरी यीशु मसीह के नाम से विनती करते हैं, यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं। सुन और कबूल कर पिता। आमीन आमीन आमीन। 2 years बाइबल रीडिंग प्लान, 2 साल का बाइबल रीडिंग प्लान। एक्ट्स 27 चैप्टर 32 वर्स से 44 वर्स तक और सैम्स 78 चैप्टर। 2 साल का बाइबल रीडिंग प्लान। प्रेरितों के काम 27 अध्याय 32 वचन से 44 वचन तक। भजन संहिता 78 अध्याय। हम अकेले में बैठकर अपने व्यक्तिगत समय में, पर्सनल टाइम में से पढ़ेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं परमेश्वर हमें सुधार करे। हमें जो चाहिए परमेश्वर लाना वो हम स्वीकार सके, ग्रहण कर सके। हमने निश्चित करना है ये कि हम अकेले में बैठकर पढ़ते हैं, तब परमेश्वर हमें कुछ बदलने के लिए हम दे रहे, आज़ादी दे रहे परमेश्वर को। ज़रूरी नहीं है सभीयों ने इसी प्रकार से पढ़ना चाहिए। हमने परमेश्वर के हाथों में देना है, जैसा परमेश्वर चाहता है वैसे हम इसको पढ़ सकते हैं। निश्चित यही करना है। परमेश्वर के आत्मा ने हमको सिखाना है और परमेश्वर के आत्मा का हमने लाभ उठाना है। प्रभु यीशु मसीह हम सब के साथ बना रहे। आमीन आमीन आमीन। पवित्र आत्मा हमें सहायता करो। ईश्वरीय रचना डिवाइन ऑर्डरलीनेस पे लेकर आओ। नासरी यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं पिता। फिट एंड फिक्स करो हमें, मांगते हैं सुन और कबूल कर पिता। आमीन आमीन आमीन।